evening, students. Now, I have completed the topic tangent normal from the application of derivative. Today we will understand one more application, or you can say one more topic under application of derivative, that is increasing and decreasing functions. Students, increasing and decreasing functions chapter is also called monotonicity. मोनोटोनिसिटी, ठीक है. तो व्हाट इज मोनोटोनिसिटी या फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. सो द टॉपिक नेम इज मोनोटोनिसिटी, बट in most of the book it is written as increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions. Okay students, मोनोटोनिसिटी का मीनिंग क्या होता है? सिंगल बिहेवियर. Here we will understand monotonicity or increasing and decreasing functions through graph. ग्राफिकली पहले हम समझेंगे व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है. तो when write concept in this chapter, what concept we have to know? To understand this chapter, let us consider some graphs. This is the x-axis, y-axis, origin. Let's say you have a curve like this. One more curve. This is origin. Let's say you have one more curve like this. Let's say students, you have a curve like this. This consists of three straight lines, but you imagine this is a single curve. This is not actually curve. This contains three straight lines. This is x-axis, this is y-axis, origin. Okay students, let the equation of all curves and taking y equal to fx. Y equal to fx क्या है? इक्वेशन ऑफ द कर्व. जो भी ड्रॉ हुआ है डायग्राम में, उन सब का इक्वेशन कुछ होगा. एवरी कर्व हैज एन इक्वेशन. So I am taking every curve as y equal to fx. Carefully listen students. If you see the figure 1, generally we study the nature. Nature means increasing या फिर decreasing behavior in a graph from left to right. From left to right, not from right to left. This point you should keep in mind, that we should always find the behavior of a function by observing the function from left to right. देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा, मतलब आई एम इंक्रीजिंग x को मैं बढ़ा रहा हूँ. ऑन x एक्सिस इफ यू इंक्रीज x, the value of the function, or you can say y value also increases. Y value increases. This you try to catch it. If I increase x, y also will increase. Y means function. Or in other word, you can say if a graph rises मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, then that is called increasing. This is increasing. In fact, this is called students strictly increasing. Strictly increasing. तो ये जो पहला फिगर है, इसमें मैंने जो भी कर्व लिया है, that is strictly increasing. Similarly, if you see the figure 2, second figure, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, मतलब इफ आई इंक्रीज x, अगर मैं x का वैल्यू इंक्रीज करूंगा, y का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू कम हो रहा है. मतलब अगर एक कर्व फॉलिंग होगा, फॉलिंग मतलब नीचे गिरेगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा,
इंक्रीजिंग में ऊपर की तरफ जाएगा, डिक्रीजिंग में नीचे की तरफ आएगा। ये ग्राफ स्टूडेंट्स, या फिर यू कैन से दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। You will understand why I am using the word strictly. Strictly मतलब completely throughout the graph. अगर increase होगा तो उसको हम strictly decreasing बोलेंगे। Throughout the figure अगर graph decreasing होगा तो हम उसको बोलेंगे strictly decreasing। इसके पास हो, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, मतलब if I will increase x, यहाँ से यहाँ तक देखो स्टूडेंट इंक्रीज तो हो रहा है, बढ़ रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। एक्स बढ़ेगा फिर भी वाई नहीं बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ तक फिर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस फंक्शन नेवर गोज डाउन, इट राइजेस अप और रिमेन्स कांस्टेंट। और रिमेन्स कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग। इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अभी आर यू गेटिंग द डिफरेंस? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ग्राफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब ग्राफ का कुछ भी पोर्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आएगा, बट इंक्रीजिंग में आ सकता है, तो ये इंक्रीजिंग है। सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन may not be strictly increasing, but a strictly increasing function is a increasing function. इन दोनों का रिलेशन क्या है? Every strictly increasing is increasing, but every increasing function is not strictly increasing. ठीक है? Similarly, the last graph, if you observe the graph from left to right, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ तो नीचे आ रहे, बट यहाँ से यहाँ तक ग्राफ इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ इज फॉलिंग डाउन या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे ही आ रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है। इसमें क्या ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। इसको हम डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, बट ये क्या है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। Understood? So, if you compare these two, every strictly decreasing is decreasing, but every decreasing is not strictly decreasing. Decreasing में क्या है? Some portion of the graph may be parallel to x-axis, but strictly decreasing में वैसे नहीं होगा. This is the overall view of strictly increasing, strictly decreasing, increasing and decreasing function. तो जो कि हमने समझे through the graph. Okay students, so we always analyze the graph or we always determine the nature of the function from left to right if we observe the graph. अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अभी हमारा बेसिक डेफिनेशन, ये तो हो गया ग्राफिकल व्यू ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, मैथमेटिकल या फिर बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। बेसिक डेफिनेशंस क्या है कि जो पहला वाला फंक्शन देखो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। केयरफुली सुनो, अगर मैं पूछूंगा इस फंक्शन का डोमेन क्या है, मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ है ग्राफ और कहाँ तक है, वो है उसका डोमेन। एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे, एक्स का वैल्यू कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, उसका हम डोमेन बोलेंगे। मान लो ये एंड पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट बी है। अभी मैं बेसिक डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन आई विल एक्सप्लेन नाउ। ठीक है, तो इन दिस डोमेन ए टू बी, फंक्शन का तो कुछ डोमेन होगा, ग्राफ होगा मतलब कुछ डोमेन होगा। इस डोमेन में मैथमेटिकल स्टूडेंट एक्सप्लेनिंग, अगर मैं दो वैल्यू लूंगा x1 और x2 फ्रॉम द डोमेन यू हैव टू टेक corresponding to x1 and corresponding to x2. केयरफुली सुनो स्टूडेंट्स, x1 के लिए x मतलब जब मैं x का वैल्यू x1 लूंगा
y का वैल्यू कितना होगा, इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक। फॉर x2 y का वैल्यू इतना होगा, इतना मतलब ये वैल्यू ओरिजिन से ये तक, यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक। x1 का कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू, फिर y का वैल्यू मतलब आउटपुट, ये दोनों इनपुट है, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, यहाँ आएगा f of x1, यहाँ आएगा f of x2। Now we can see that as I am increasing x, अगर मैं x का वैल्यू इंक्रीज करूँगा इन द डोमेन, then corresponding output also will increasing। बेसिक डेफिनेशंस में पहला डेफिनेशन लिखेंगे, a function fx is strictly increasing, a function fx is strictly increasing you can note whatever I am saying, if x1 less than x2, देखो इन दोनों में कौन छोटा है, x1 पहला है तो वो छोटा होगा, वो बड़ा होगा, that double implies f of x1 less than f of x2। This is the basic definition for strictly increasing function in a given domain। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस फंक्शन का डोमेन है a to b, इस डोमेन से दो वैल्यू ले जाओ x1 और x2 such that x1 is less than x2, then from the graph it is obvious, it is clear that f of x1 f of x2 से छोटा होगा, यहाँ से यहाँ तक f of x1, यहाँ से यहाँ तक f of x2, you can easily observe f of x1 f of x2 से छोटा है, मतलब छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा। अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगा, x को घटाऊंगा तो y भी घटेगा, उसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 2, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या होगा, देखो केयरफुली सुनो। अगर मैं x1 यहाँ लूंगा और x2 यहाँ लूंगा, केयरफुली देखो, x1 का आउटपुट x2 का आउटपुट, x1 का आउटपुट छोटा है x2 का आउटपुट से, आई एम नॉट मार्किंग ऑन y एक्सिस, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, x1 x2 से छोटा है, f of x1 f of x2 से छोटा है। अगर मैं x1 यहाँ ले जाऊंगा, केयरफुली समझो इसको, x1 का करस्पॉन्डिंग आउटपुट x2 का भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट सेम आ जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन है कि x1 अगर x2 से छोटा होगा, f of x1 f of x2 से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो इंक्रीजिंग इफ x1 less than x2 double implies f of x1 less than equal to f of x2। x1 x2 क्या है, कोई भी दो एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इससे भी हम डोमेन को मार्क कर सकते हैं। लेट्स से दिस स्टार्ट्स फ्रॉम a and this graph the right hand end point is b, तो डोमेन हो गया तुम्हारा a to b। इस डोमेन से हमको दो x लेना होगा x1 x2 such that x1 is less than x2, that double implies f of x1 less than equal to f of x2। this definition you should keep in mind, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब डेफिनेशंस आ सकता है, कंडीशंस आ सकता है। तो और एक बार बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर x1 x2 से छोटा होगा तो f of x1 f of x2 से छोटा होगा। इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या है, अगर x1 x2 से छोटा होगा then f of x1 less than or equal to f of x2, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। Now I think you can easily write the condition, basic definition for strictly decreasing। फिर भी मैं लिख रहा हूँ again, a function fx is strictly decreasing if, इसमें भी कुछ डोमेन होगा स्टूडेंट्स। डोमेन मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, उसको हम बोलेंगे डोमेन। से a से शुरू होकर b तक है, इसको तुम करेस्पॉन्डिंग x मार्क कर लो, a यहाँ b ले जाओ, यहाँ दो इनपुट लो x1 x2, देन यू कंपेयर करेस्पॉन्डिंग आउटपुट। x1 x2 को मैं बोलूँगा इनपुट, x1 के लिए जो y का वैल्यू आएगा वो आउटपुट, x2 के लिए जो y का वैल्यू आएगा वो एक आउटपुट है। ये डेफिनेशन बहुत इजी भी है
फंडामेंटल भी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। x1 का करेस्पॉन्डिंग आउटपुट देखो यहाँ तक है, x2 का करेस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ तक है। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, x1 x2 से छोटा है, बट x1 का करेस्पॉन्डिंग आउटपुट x2 का करेस्पॉन्डिंग आउटपुट से बड़ा है, मतलब इनइक्वालिटी साइन रिवर्स होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर भी वही इनइक्वालिटी, ठीक है। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, इफ x1 लेस देन x2 that will implies f of x1 greater than f of x2. In short we can remember, strictly decreasing में छोटे इनपुट पर बड़ा आउटपुट आएगा, बड़े इनपुट पर छोटा आउटपुट आएगा, मतलब जहाँ पर x छोटा होगा उसका करस्पॉन्डिंग y बड़ा होगा, जहाँ x बड़ा होगा उसका करस्पॉन्डिंग y छोटा होगा, मतलब कम होगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा, मतलब डेफिनेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग if x1 less than x2 double implies f of x1 greater than or equal to f of x2। इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में इक्वलिटी साइन आ सकता है, दैट इज ऑब्वियस। जो मैंने यहाँ बताया था इंक्रीजिंग में वैसे ही होगा। दिस इज योर एक्स एक्सिस, देखो मैं अगर x1 यहाँ लूँगा और x2 यहाँ लूँगा, x1 का आउटपुट x2 का आउटपुट से बड़ा है, मतलब f of x1 greater than f of x2 हो रहा है। नाउ यू कैन आस्क मी सर इक्वलिटी साइन क्यों है, वो डिपेंड करेगा। अगर मैं इस कांस्टेंट रीजन में एक x1 ले जाऊंगा, अभी देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, x1 का करस्पॉन्डिंग आउटपुट x2 का करस्पॉन्डिंग आउटपुट सेम आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन आता है जनरली एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। ये एक चीज हो गया हमारा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, और एक बात स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन उसका डोमेन में कंप्लीटली इंक्रीजिंग होगा नहीं तो कंप्लीटली डिक्रीजिंग होगा, उसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस, उसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस। जैसे कि देखो, now you can easily classify by observing the graph। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है ग्राफ। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नीचे आ रहा है। x बढ़ाने पे y, x बढ़ाने से y घट रहा है, यहाँ x बढ़ाने से y बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्राफ देखो, ये पूरे की पूरे इंक्रीजिंग ही है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग बट एवरी इंक्रीजिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर एक फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीज होगा नहीं तो कंप्लीटली डिक्रीज होगा, उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, ए फंक्शन व्हिच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। यू कैन राइट ए फंक्शन व्हिच इज आइदर इंक्रीजिंग, खाली इंक्रीज होगा नहीं तो खाली डिक्रीज होगा, उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये जो दो ग्राफ है दोनों के दोनों मोनोटोनिक है। ये तुम्हारा y इक्वल fx, ये तुम्हारा y इक्वल टू fx। दिस इज मोनोटोनिक, दिस इज आल्सो मोनोटोनिक बिकॉज दिस इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग, दिस इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग। अभी आएगा तुम्हारा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक, इसके अलावा और कुछ अगर होगा ग्राफ उसको हम बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक क्या है, देखो स्टूडेंट्स, लेट्स से आई एम टेकिंग ए ग्राफ लाइक दिस, लेट्स से दिस पॉइंट इज मार्क्ड ए, दिस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज योर फंक्शन y इक्वल fx, इसका आपका इक्वेशन है y इक्वल fx, इसका डोमेन क्या है a टू b, domain is a to b,
हम इस ग्राफ को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया है, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया है। टर्निंग मतलब जिस पॉइंट के अराउंड फंक्शन का नेचर चेंज होगा। जैसे कि ए से दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज सी, दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज बी। केयरफुली एनालाइज करो, ए से सी तक मतलब इन दिस इंटरवल द ग्राफ राइजेस मतलब इंक्रीजिंग होगा। सी से डी तक इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ग्राफ नीचे आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? सी से डी तक। फिर डी से बी तक अगेन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई पूछेगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, हम ऐसे आंसर देंगे ये फंक्शन या फिर ये ग्राफ ए से सी तक इंक्रीजिंग एंड डी से बी तक इंक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल इंक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल आल्सो इंक्रीजिंग, फिर सी से डी तक डिक्रीजिंग। अगर कोई पूछेगा ए से बी तक क्या है, हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो क्योंकि ए से बी जो इंटरवल था हमारा, कुछ इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, कुछ इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट हैविंग सिंगल बिहेवियर। एक तरह की बिहेवियर नहीं है, दो बिहेवियर है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। सो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? द फंक्शंस व्हिच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या है? फंक्शन व्हिच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, खाली इंक्रीज होगा नहीं तो खाली डिक्रीज होगा, उसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक क्या है? ए फंक्शन व्हिच इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ये है तुम्हारा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का ग्राफ। ये दो क्या है? मोनोटोनिक। ये ग्राफ क्या है? नॉन मोनोटोनिक। लास्टली आई एम सेइंग वंस मोर, अगर इस ग्राफ में पूछा जाएगा ए से बी तक इंटरवल जो कंप्लीट डोमेन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम बोलेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दिस पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड। क्यों इसे हम बोल रहे हैं? क्योंकि ए से सी तक इंक्रीजिंग, डी से बी तक इंक्रीजिंग, सी से डी तक डिक्रीजिंग, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड। ये हो गया तुम्हारा मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स next we will try to understand in today's video. I will focus to understand you the basic concept of increasing and decreasing function. From the next class onwards we will do problem. Next year student, monotonicity of a function at a point. Monotonicity of a function at a point मतलब एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम जस्टिफाई करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर नाइदर है, कुछ भी नहीं है। You understood the heading? Monotonicity of a function at a point. At a point. तो देखो इसमें भी मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। लेट्स से यू ग्राफ लाइक दिस इज y इक्वल टू fx। लेट्स आई एम टेकिंग ए पॉइंट ए। इस ग्राफ को देख के हम बोलेंगे क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एट द पॉइंट ए आल्सो इट इज इंक्रीजिंग। बट इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? देखो, ए का एक हम छोटा सा नेबरहुड लेंगे, मतलब ए के आगे एक पॉइंट लेंगे, एक ए से पीछे एक पॉइंट लेंगे, बहुत क्लोज। लेट्स से दिस पॉइंट यू कैन मार्क ए माइनस एच, इससे आगे एक पॉइंट ले जाओ ए प्लस एच। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ए।
तो a माइनस h से a प्लस h तक एक इंटरवल आ जाएगा, उस इंटरवल में a है, ठीक है। तो अगर हम अभी देखेंगे a माइनस h का करस्पॉन्डिंग आउटपुट, a प्लस h का करस्पॉन्डिंग आउटपुट, यू कैन सी दिस डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएगा f ऑफ a माइनस h, ये आएगा f ऑफ a, ये आएगा f ऑफ a प्लस h। We are discussing in this section monotonicity of a function at a point. देखो स्टूडेंट्स, the condition क्या होगा, for fx to be increasing at x equal to a, we must have f of a minus h less than f of a plus h. This definition is used for increasing a function is said to increasing at a point x equal to a. यहाँ पर h क्या है, h is very small positive quantity। a से कुछ पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो पीछे आएंगे, a से छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो हम आगे आएंगे। तो ये भी तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन से मैच हो रहा है। a से पहले फंक्शन का वैल्यू छोटा होगा, a के बाद फंक्शन का वैल्यू बड़ा होगा, a में उन दोनों के बीच में आएगा। तो f ऑफ a क्या है, इन दोनों के बीच में आएगा। छोटे इनपुट पर छोटा आउटपुट आएगा, बड़े इनपुट पर बड़ा आउटपुट आएगा। दिस इज द डेफिनेशन फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एट द पॉइंट x इक्वल टू a। अंडरस्टूड? Similarly for decreasing, you can write the condition. Let's say I am taking a decreasing graph. This is your point A. इसके आगे तुम्हारा a plus h आएगा, उससे पीछे तुम्हारा a minus h आएगा, ये तुम्हारा y equal to fx, a minus h पर आउटपुट इधर आएगा f of a minus h, a पर आउटपुट यहाँ आएगा, a plus h पर आउटपुट यहाँ आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, for fx to be decreasing at x equal to a, we must have, या फिर you can say this is a condition, f of a minus h greater than f of a greater than f of a plus h. So this condition you have to remember for monotonicity of a function at a point. Okay students, one more point you can add. Here ये जो मैंने डेफिनेशंस दिया, जो भी कंडीशंस मैंने लिखवाया, here the function fx need not be continuous and differentiable। इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा या फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उसमें भी हम ये कंडीशन लगाकर चेक कर पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है एट ए पॉइंट x इक्वल टू। ठीक है, अभी मैं कुछ ग्राफ्स लूँगा जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता, फिर भी हम जस्टिफाई करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है एट ए गिवन पॉइंट। Now I will take some graphs.
axis and origin, x axis, y axis and origin. स्टूडेंट्स, इन ऑल द ग्राफ जहाँ पर मैंने होलो सर्किल बनाया है, एम्प्टी सर्किल, दैट पॉइंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ, दैट पॉइंट इज नॉट देयर इन द ग्राफ। जहाँ पर डार्क पॉइंट है वो पॉइंट ग्राफ में इंक्लूडेड है। In every graph, you can denote the equation of curve as y equal to fx, y equal to fx. Okay. So every curve is your y equal to fx, y equal to fx. जो भी मैंने ग्राफ लिया है, हर ग्राफ का इक्वेशन आई एम एज्यूमिंग y equal to fx. जनरल फंक्शन में ले रहा हूँ, एग्जैक्ट क्या है मुझे पता नहीं। पहले ग्राफ को देखो, फिगर 1, there are 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स। इन फिगर 1 अगर मैं देखूंगा ग्राफ को, ए पर 7 कॉर्नर आ रहा है, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर सडनली चेंज होकर ऊपर जा रहा है। ऐसे पॉइंट हम बोलेंगे 7 कॉर्नर। मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में, इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स रिमेंबर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पर? x इक्वल टू a पर। इस पॉइंट को मैंने लिया x इक्वल टू a। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, कहाँ पर? एट द पॉइंट x इक्वल टू a वी कैन चेक द फॉर्मल कंडीशन। a से पहले और a के बाद अगर मैं फंक्शन का वैल्यू चेक करूंगा या फिर y का वैल्यू, यहाँ पर आएगा f ऑफ a माइनस h, फिर बीच में आएगा f ऑफ a पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर है, फिर a प्लस h पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन द फर्स्ट फिगर f ऑफ a माइनस h लेस देन f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस h। Remember student, this was the condition for increasing at the point x equal to a. So we say this function, you can note it, इसके नीचे तुम लिखो कि ये फंक्शन, जो भी फंक्शन है यहाँ पर x equal to a पर इंक्रीजिंग है। x equal to a पर क्या है? इंक्रीजिंग। So this middle point is your x equal to a student, x equal to a पर इंक्रीजिंग है। Still the function is not differentiable at x equal to a. We are able to say that the function is strictly increasing at x equal to a. ठीक है, understood? फिर the second graph, a से पहले और a के बाद, a से पहले जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उसको हम लिखेंगे f ऑफ a माइनस h। a पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा दैट इज f ऑफ a प्लस h। a से a के बाद f of a plus h. In the second figure, you can easily see f of a minus h greater than f of a greater than f of a plus h. ठीक है? So this is the condition for decreasing function. So we say in the second figure, the function is not differentiable at x equal to a, क्योंकि a पर 7 कॉर्नर है, सडन चेंज हो रहा है ग्राफ, उसको बोलेंगे हम 7 कॉर्नर है। So this function is not differentiable at x equal to a, but this function is decreasing at x equal to a. So in the second figure we will write that the function is decreasing at x equal to a. We are discussing in all the graph that the function is increasing or decreasing at x equal to a. थर्ड फिगर को देखो, अभी मैं डायग्राम में कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। f of a minus h, देखो स्टूडेंट, a minus h का वैल्यू नीचे आएगा। a से पहले फंक्शन का वैल्यू यहाँ तक है। a पर फंक्शन का वैल्यू ये नहीं लेंगे सुनिए, तो होलो सर्किल है, ऊपर डार्क सर्किल है, तो ये आएगा तुम्हारा f ऑफ a। a के बाद a के बाद फंक्शन का वैल्यू ये आएगा। इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है?
देखो अगर मैं लिखने के लिए कोशिश करूंगा इन द थर्ड फिगर एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एच, वो तो ऑब्वियसली छोटा है एफ ऑफ ए से, दिखाई दे रहा है एफ ऑफ ए कहाँ पर है, एफ ऑफ ए माइनस एच कहाँ पर है, एफ ऑफ ए माइनस एच यहाँ पर है, एफ ऑफ ए यहाँ पर है। सो एफ ऑफ ए माइनस एच छोटा है एफ ऑफ ए से, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली स्टूडेंट, एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा है, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। दिस कंडीशन was not there, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन तो नहीं था। इंक्रीजिंग में क्या था, ये छोटा ये भी छोटा आना चाहिए, डिक्रीजिंग में क्या था, ये बड़ा ये भी बड़ा आना चाहिए। इंक्रीजिंग में दोनों के दोनों लेस देन साइन होते हैं, डिक्रीजिंग में दोनों के दोनों ग्रेटर देन साइन होते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, एक लेस देन आ रहा है एक ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम नाइदर। दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। समझ में आ रहा है, neither मतलब neither increasing nor decreasing at x equal to। in the next figure f of a minus h कम है, f of a बड़ा है, f of a तो बड़ा है, f of a plus h ये तुम्हारा f of a है, ये तुम्हारा f of a minus h है, f of a plus h। सुनो सर, a के लिए वैल्यू में मुझे ये लेना होगा क्योंकि यहाँ पर डार्क सर्किल है, ये दोनों के दोनों होलो सर्किल है, मतलब ये दो पॉइंट ग्राफ के नहीं है, ग्राफ से एक्सक्लूडेड है। यहाँ आएगा f of a plus h। आई थिंक इन दिस फिगर आल्सो दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? f of a माइनस h छोटा है f of a से, f of a बड़ा है f of a plus h। so this is also neither, this is also neither, this is neither increasing nor increasing at x equal to। in this figure देखो सर, फिगर 5 में फिफ्थ फिगर है, a माइनस h के लिए फंक्शन का वैल्यू यहाँ आएगा, a के लिए फंक्शन का वैल्यू बीच में आएगा, a प्लस h के लिए फंक्शन का वैल्यू यहाँ आएगा। तो अगर हम लिखने के लिए कोशिश करेंगे f ऑफ a माइनस h छोटा है f ऑफ a से, f ऑफ a छोटा है f ऑफ a प्लस h से, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, the function is increasing at x equal to a। in every figure we are discussing increasing decreasing behavior at x equal to a। so ये क्या है, increasing at x equal to a। समझ में आ रहा है, ये increasing का कंडीशन है। बट इस फिगर में हम लिखेंगे इस फिगर में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट नो नीड टू चेक, व्हाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी डू नॉट चेक हियर, बिकॉज a के लिए फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। देखो a पर यहाँ पर भी होलो सर्किल, यहाँ पर भी होलो सर्किल, इस लाइन में कहाँ पर डार्क सर्किल नहीं है, तो a क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन में नहीं है, we should not check increasing and decreasing behavior at x equal to, that's why I have written no need to check। अगर एक पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग जानने के लिए हम कोशिश करेंगे, वो पॉइंट फंक्शन का डोमेन में होना चाहिए, क्योंकि ए डोमेन में ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, नो नीड टू चेक। बट इन द लास्ट फिगर देखो इसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए तो यहाँ पर है, दिस इज एफ ऑफ ए, क्योंकि ए पर करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डार्क सर्किल है, ए माइनस एच के लिए फंक्शन का वैल्यू ऊपर आ रहा है एफ ऑफ ए माइनस एच, ए माइनस एच बड़ा है एफ ऑफ ए से, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच चेक करेंगे, ये तुम्हारा ए प्लस एच। इफ यू सी द डायग्राम केयरफुली हियर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल है, तो इफ वी विल ट्राई टू राइट द मैथमेटिकल फॉर्म, एफ ऑफ ए माइनस एच बड़ा है एफ ऑफ ए से एंड एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ऐसे तो कंडीशन कुछ नहीं होता है, आइदर ग्रेटर देन होगा नहीं तो लेस देन होगा, बट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन फिर यहाँ इक्वल आ गया, इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन इज नाइदर, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू, अंडरस्टूड?
Next, one more concept we will understand. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस होगा। पिछला डिस्कशन था, अभी जो मैंने मिटा दिया, फर्स्ट दोनों फिगर को छोड़कर बाकी सब ग्राफ और लास्ट ग्राफ उसका प्रीवियस ग्राफ को छोड़कर बाकी सब ग्राफ अगर तुम देखोगे एक्स इक्वल ए पर डिसकंटिन्यूस था, मैं वो बोलने के लिए भूल गया, ए पर डिसकंटिन्यूस था, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, स्टिल वी आर एबल टू जस्टिफाई द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, वो मैं बोलने के लिए भूल गया, सॉरी फॉर दैट। In the next class we will discuss for differentiable function, monotonicity for differentiable function. One last concept, I will complete that concept within 5 to 10 minutes, then we will start problem. Thank you all for watching my channel and take care, all of you.